پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے معزز حضرات اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس خالق کائنات نے ہمیں ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے آمین آمین اور اللہ رب العالمین کا کرم و احسان ہے جس نے ہمیں آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا بے شک معزز حضرات میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیہ کریمہ کا گفتگو کا موضوع بنایا ہے جس میں خالق کائنات اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمین بے شک تحقیق آ گیا اللہ کی جانب سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب بے شک سبحان اللہ آپ کو معلوم ہے کہ نور سے عام پر مفسرین کرام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی لیتے بے شک یہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی تعریف و توقیر بیان فرمائی ہے بے شک حق سبحان اللہ کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب یہ پوری کائنات بنائی تو کسی پر احسان نہیں جتلایا لیکن جب نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تو مسلمانوں کو فرمایا کہ یہ تم پر احسان ہوا کہ تم میں سے ایک رسول آیا بے شک حق میں نے رسول بھیجا بے شک بالآخر نور مبین سے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو یہاں سے مراد ہے جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب یہ عید میلاد النبی ہے کیا میلاد سے مراد یہاں پر جو ہے لفظ میلاد یہ عربی لفظ ہے اور عربی ورڈ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پیدائش اور یہاں پر جو لکھنے والے مفسرین کرام اور بھی جو لغت لکھتے ہیں جو اور کتابیں لکھتے ہیں وہ یہاں پر جو مراد لیتے ہیں وہ دن مراد لیتے ہیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے بے شک حق سبحان جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں پیدا ہوئے تشریف لائے تو اسی کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پکارا جاتا ہے بے شک حق تو یہ عید میلاد النبی یہ ایک ایسا دن ہے یہ ایک ایسا عید ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں اول ما
अलैहिस्सलाम की वालिदा है, वो फरमाती है जब मेरे शिकम मुबारक में आका अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज थे, जब विलादत के दिन करीब आ गए तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे घर में सितारे मेरे करीब आने लगे। मैं ये सोच रही थी कि ये सितारे ये कहीं मेरे हुजरे में टूट न पड़े, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो आका अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही सर जमीन पर रख लिया और अल्लाह की बारगाह में सजदा कर दिया और दुनिया वालों को बता दिया कि बच्चे तो दुनिया में बहुत पैदा हुए, लेकिन इस जैसा बच्चा यानी आका अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत दुनिया में कभी न आई है, न आएगी, न क़यामत तक आ सकती है, क्योंकि आका ने जो सजदा किया है ना वो इस हालत में किया है, क्योंकि सजदा करने के लिए जमीन का पाक होना लाजमी है और बदन का पाक होना लाजमी है, कपड़े का पाक होना लाजमी है। जब मासूम बच्चे ने यानी आका अलैहिस्सलाम ने जब सजदा किया, यहाँ से मालूम हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने शिकमे मुबारक से पाक होकर दुनिया में तशरीफ ले आए। तो आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप समझ लीजिए। तो यहाँ से मालूम हो गया कि जो आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए पाक और साफ होकर ले आए। हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने ये सोचा कि मेरे जिस्म से जो निकला वो नूर निकला है, वही आका अलैहिस्सलाम है। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शय से पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। जब दुनिया में कोई शय मौजूद न थी तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। हज़रात इतना ही नहीं, आका अलैहिस्सलाम जब मक्का शरीफ में पैदा हुए तो उस वक्त वहां पर कोई मुसलमान नहीं था, उस वक्त कुफ्र था, मुसलमान कोई नहीं था। लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम ने वहां से हिजरत फरमाई, आज कुछ लोग हमें एतराज करते हैं, कुछ जाहिल लोग होते हैं, जब हम कहीं जुलूस निकालते हैं, जब हम कहीं नारे तकबीर नारे रिसालत की आवाज बुलंद फरमाते हैं तो वो एतराज करते हैं भाई दलील लाओ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दलीलें मौजूद है, दलील नहीं बल्कि सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीसें भी मौजूद है। क्योंकि जब आका अलैहिस्सलाम पैदा हुए उसके बाद कुछ अरसे के बाद आका अलैहिस्सलाम जब मक्के से वापस तशरीफ लाए मदीने शरीफ के लिए, तो जब मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे थे तो मदीना शरीफ में ईमान थे साहिब ईमान लोगों ने क्या किया कि वो जुलूस की शक्ल में और मदीना शरीफ को सजाया गया है, मदीना शरीफ को रौनक डाल दी गई है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी थी वहां पर और छोटे बच्चे छतों पर चढ़ गए और आका अलैहिस्सलाम की इंतजार में रहे। और जब छतों पर चढ़े ही नहीं बल्कि जुलूस भी निकाल लिया और झंडे भी लगा लिया, यहाँ से मालूम हो गया यानी मर्द और औरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में थे। यह आज की बात नहीं है। जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ तशरीफ ले गए, वहां जब देख लिया पूरा मदीना रौनक दी डाली है, पूरा मदीना चमक रहा है। जब आका अलैहिस्सलाम पहुंचे वहां तो मदीने वालों ने खैर मकदम किया और या रसूलल्लाह के नारे लगा दिए। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये वो दौर था, ये आज नई बात नहीं है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ही है जुलूस ये जलसे हो रहे हैं। आज अगर कोई एतराज करता है हम उसके एतराज को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने जो काम किया है वो क़यामत तक मोमिन के लिए फर्ज है कि वो उसको निभाए। बेशक। इतना ही नहीं, आप जानते हैं आका अलैहिस्सलाम ने हर एक को दावत दे दी, मक्का वालों को दावत दी,
मदीने गए तो मदीने वालों को दावत दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनके किस्मत में लिख लिया है उन्होंने ईमान ले आए, वो ईमान लाए। जिनके किस्मत में ईमान लाना नहीं था उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम में डाल दिया। लेकिन जिन्होंने ईमान लिया उनके वाक़यात सुन ले, जिन्होंने ईमान नहीं लाया उनके वाक़यात भी हमने पढ़ने हैं, क्योंकि हमें इबरत लेनी है कि बुराई से क्या होता है और अच्छाई से क्या होता है। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अबू लहब का जिक्र है, आप सब जानते हैं, कलाम मुक़द्दस के अंदर पूरा तब्बत यदा अबी लहब, तबाह बर्बाद हो जाए अबू लहब के हाथ। क्यों? क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन हाथों ने अज़ियत पहुंचाई। उसके बावजूद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे ईमान के लिए दावत दे दी थी कि इस्लाम से मुशर्रफ हो जाओ, इस्लाम ले आओ, ईमान ले आओ, लेकिन नहीं माना। अब सुन लो उसका वाक़या, क्योंकि ये ईद मिलादुन नबी वो है कि इस ईद मिलादुन नबी के सदके से उससे भी राहत मिलती है। वो कैसे? सुन लो। अबू लहब को एक लूंडी थी, सोइबा नाम की लूंडी एक थी, और वो उसने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो उस दिन उसने अपनी उंगली से इशारा करके उस लूंडी को आजाद किया था। और जब आजाद किया, कब किया? जब हुजूर अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो जब अबू लहब मर गया और उसके अहवाल जब उनके घर वालों से पूछे गए तो उन्होंने कहा, उन्होंने जब उसे ख्वाब में देखा, कहा अबू जहल आपके साथ क्या हो रहा है? तो अबू जहल ने कहा मेरे साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है, मैं दर्दमंद अजाब में मुब्तला हूँ, मैं बहुत ही अजाब में मुब्तला हूँ, लेकिन सोमवार के दिन मुझे एक उंगली में राहत मिलती है, जिस रात से मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी पर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा होने पर जो लूंडी मैंने आजाद की थी, उस दिन मुझे इस उंगली में तखफीफ होती है, अजाब में कमी होती है। अब ईमान वालों को फख्र करना चाहिए, साहिब ईमान वालों को फख्र करना चाहिए कि हम उसके गुलाम हैं, जिसकी वजह से काफिरों को भी फायदा पहुंचता है। जब कोई